क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हो, खुद ही अज्यूम कर लेंगे कई बार। चलिए ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन फॉर रिवीजन ऑफ एडमिशन। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. 3:1 on 1st April 2018. On 1st April 2018, their position was given below balance sheet. While copying the question only, get into the question. बाद में क्वेश्चन पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एवरीथिंग यू शुड नो। Who are the partners? What is their old profit sharing ratio? What are the liabilities? What are the assets given? What are accumulated profits and reserves? What are accumulated losses given there? Whether there is goodwill already appearing in the book or not? Eh? What should be the new profit sharing ratio? Which case is there? How I will calculate sacrificing ratio? While copying the question only, you should be doing this thing within yourself. Okay, and then I have told you the steps, 7 steps to solve a full length question. Liabilities, capitals of A and B, 2 lakh and 80,000. 2 lakh A's capital and 80,000 B's capital. 2 lakh 80,000. Then there is next item, sundry creditors, 70,000. अगर आप जल्दी जल्दी करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000. दैट्स ऑल. असेट साइड 20,000 गुडविल. प्लांट 1 lakh. Plant 1 lakh. Patents 10,000. Patents 10,000. Stock 1,42,000. Stock 1,42,000. Sundry debtors 50,000. 50. Cash 18,000. 18. Profit and loss account 20,000. Balance sheet total 3,60,000. 3,60,000. Additional information, they admit C for 1/6 share. 1/6 share in the profit upon following terms. Number 1, goodwill is to be valued at 1 year's purchase. At 1 year's purchase of 5 years average profit. 1 year's purchase of 5 years average profit, which were
20,000, 30,000, 30,000, again 40,000 and 60,000. 20, 30, 30, 40, 60,000. 5 साल हो गए. Number 2, C agrees to contribute. C agrees to contribute one fourth of the combined capital of A and B in the new firm. Number 3, plant is to be written down to 80,000. Plant is to be written down to 80,000, 80, and patents written up to 12,000. Next, provision of 2% of debtors is required. A provision of 2% on debtors is required. Next, a liability of 5,000 included in sundry creditors is not likely to arise. Prepare revaluation, partners capital and balance sheet after admission of C. We will try to solve this question on the board also, one by one, according to the steps I have told you. So Amit will calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio little clearly. New profit sharing ratio. This is case number 1. This is case number 1. So it is already clear to you that sacrificing ratio will be same as old ratio. Creditors. Buy different, who buy? Making a habit. New profit sharing ratio. तुमने कहा कि ये पागल है, वो मैंने सोचा।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15:5:4। अरे निकालो स्टेप बाय स्टेप, ऑलवेज। हाउ यू विल कैलकुलेट sacrifice ratio? और माइनस whether it is given in the question or not, you have to calculate. Already, if new profit sharing ratio is given, तब दूसरी बात है, वो तो आपको पता है कि ये ओल्ड रेशियो की सेक्रीफाइस आएगा। एग्जाम्पल तो मानेंगे, वो तो आपको जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो हम मार्क्स काट लेंगे उसको। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ, आप जब कैलकुलेट करेंगे और नहीं आए तो आप समझ जाना कि गलत आया मेरा। दैट इज व्हाई दैट टिप इज गिवन। ओल्ड माइनस न्यू 24। Sacrificing ratio is 3:1. By very good, Amit has solved it correctly. This is the first step. The sacrificing ratio in case 1, as I have told you already, is always equal to the old ratio, and it has come 3:1. Okay, Mansa, if you are not calculating it in the exam, the marks will be cut. Okay, this has to be done. That is why I have told you that this is the first step in the calculation of a full length question. अब ये जो 3:1 आ गया है, यहीं पर बेटा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कर लो। व्हाट इज द गुडविल? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन गुडविल कितनी? नो, हाँ सर वो 18 सर 1 सर 30 टोटल एवरेज टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ रही है? 1,80,000। 1,80,000 इंटू 1/6 आगे सर 30,000। 30,000 and listen here, hey, total goodwill of the firm will be calculated as given in the question on the basis of 1 year purchase of average profit of last 5 years. Last 5 years का profit add करके divide by 5, that will be the goodwill of firm, and then multiplied by 1/6. New partner share, total share of new partner is 30,000, 30. It is not given in the question that the new partner brings his share of goodwill in cash. Therefore, his current account will be debited and partner's account, capital account will be credited. Journal entry, पहले journal entry note करो. Cease current account debit. Cease current account debit 30,000 to A's capital account and to B's capital account. To A's capital account and to B's capital account in the ratio 3:1. 30,000 in the ratio 3:1. कितना हो जाएगा?
Sir, 22,500,7500. 22,500 A's capital account, 7,500 B's capital account. Now, revaluation account will be prepared by Arslan. Yes, sir. Okay. Rub it and there. Total level loss. Revaluation account will be prepared by Arslan. Total 14,000 will be divided between A and B and their old ratios. बिजनेस में भी कल से हम हर सब्जेक्ट से बाइस करना शुरू करेंगे और अकाउंट्स में भी फंडामेंटल से कल से टुडे आई विल पुट द मैसेज ऑफ और इसी मंथ में आपको वो भी देंगे प्रैक्टिकल फाइल या very nice. Total loss 14,000 between A and B in their old ratio. A's account will be debited by 10,500 and B's account will be debited by 3,500. नीचे कैपिटल यहाँ नहीं आएगा दोबारा बनाना है रिवैल्यूएशन हो गया ना कैपिटल अकाउंट बनाओ कंटिन्यू विद द कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट somebody else like father कैपिटल अकाउंट एक इसमें गुडविल है जिसे राइट ऑफ करना है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जिसे राइट ऑफ करना है आया सबसे पहले उसके बाद कैपिटल अकाउंट में उस तरह टू गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस और टू रिवैल्यूएशन एंड लॉस तीन चीज आएंगी लॉस मतलब कि टू रिवैल्यूएशन प्रीमियम और गुडविल लिखते हैं वहां पर लिखेंगे बाय सीज करेंट अकाउंट ये वैल्यूएशन क्लोज है ठीक है कौन सी कैपिटल ये सर आती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये प्रॉफिट लॉस का आइटम ये कहां दिया इधर दिया
लॉस है वो। सुनिए तो हम से बांट देंगे, बचा हुआ नए पार्टनर के आने पे जो पुराना रिजर्व वगैरह हमारे पास सब बांट लेंगे आप ओल्ड पार्टनर। एक रिवैल्यूएशन का लॉस, टू रिवैल्यूएशन। इधर देखो एक बार बोर्ड की तरफ है, वेट सर लुक एट द बोर्ड। कैपिटल अकाउंट जिसको सबसे मुश्किल समझता है, सबसे आसान है, ये भी इन्होंने कॉपी किया है फ्रॉम द बैलेंस शीट। ये भी रिवैल्यूएशन से आया, ये बैलेंस शीट से कॉपी किया। अभी यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटेंगे, वो भी वहां से। एवरीथिंग इज ओनली पिक एंड ड्रॉप, pick and drop. Only thing is you should know where it is and where you have to take it. Workman compensation reserve and goodwill. Workman compensation reserve, all things in old ratio. All items in old ratio from the balance sheet. 2.5 गुना 3 7.5 अरे 10,000 डिवाइड बाय 4 2500 हो गया, 2500 75 फिर 65 लिख दो। बाय सीज करंट अकाउंट गुडविल। अगर गुडविल को कैश बनाना होता तो तब भी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। Anything else left? अब आप निकाल दीजिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, क्योंकि उसके बेसिस पे निकालनी है हमें कैपिटल ऑफ सी। लिखा है पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट होगा क्या लिखा? तीसरा पॉइंट ए एंड बी की जो कंबाइंड कैपिटल आएगी उसका 1/4 सी विल ब्रिंग। तब आप लिख देना वहां पर बाय कैश और सी में बोल देना 75,100 ये ना मतलब 75,100 सर 30,000 करके सर आपको 1,89,500। यस सर। हाँ तो मैं निकाल तो रहा हूँ, निकाल रहा, सही तो निकाल रहा। 80,000 नहीं है क्या 4732 70,000 है सर बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है? तो 70,000 है। यस सर बैलेंस कैरेट डाउन मैंने तो बोला किसकी? सर ये सी की सी की तो उसमें आ रही है 60,500 60,500 60 सर 70 आ रही है। सर 70 आ रही है। नहीं सर 2,80,000 into 1/4 2,00,000 2,80,000 का 1/4 नहीं एक ही ए कैपिटल आ रही है 1,71,500, बी की कैपिटल आ रही है 70,500। एक ही कंबाइंड कैपिटल 266 आ रही है सर। कंबाइंड कैपिटल देखा जाएगा तो फिर कंबाइंड कैपिटल आएगी
सर भगवान कंपनसेशन तो नहीं आ 2,60,000 आ रही है ना। सर भगवान कंपनसेशन दिया है कंपनसेशन सर ये आ रही है सर कंबाइंड कैपिटल दोनों की और ये अलग अलग है नहीं कंबाइंड मतलब वो 18950 नहीं ये नहीं है अलग अलग आ रही है 171,500 70,500। अरे 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 भाई रुको ये सब इसको माइनस तो करने दो वही तो कह रहा हूँ मैं। तुम लोग रोज जाओ आज अपना काम कर सकते हो इसको माइनस सारे आइटम से लिए हैं देखते हैं। सर बी की 76,500 हाँ 280 into 1 अरे ठीक सही है जो उधर एडजस्टेड कैपिटल आएगी इधर आएगी बैलेंस उसके बाद ही सर ऐसे कैसे सर मतलब इसका पूरा बनने तब तो आएगा बैलेंस कमा बचेगा बैलेंस कब तक? मतलब सर ये बाद में लिखेंगे हाँ। ये पूरा निकाल सर आ गया फिर उसके बाद नई कैपिटल आएगी नहीं क्यों नहीं सर बी की कैपिटल 76,500 उधर देखो 725 पहले इसको वो कर दो मैंने तुमसे क्या कहा बेटा पहले इसका टोटल करो ये टोटल माइनस करो अब बैलेंस कैपिटल आएगी 1,89,500 1,89,500 सही तो आ रही है। इसलिए खरीदना है वैल्यूएशन में 7,500 लिखा हुआ है 3,500 डायरेक्ट में हाँ रिवैल्यूएशन का लॉस क्या है रिवैल्यूएशन लॉस ये 3,500 500 हाँ। तो हाँ यहाँ पे सर 1,89,500 ही आ रहा है इसका भी 1,89,500 आ रहा है इसका भी मेरा भी आ रहा है। अभी निकाल ले दो हम दोनों का सेम आ रहा है। कोई बात नहीं 76,500 ठीक हो गया 1,89,000 Majority होनी और चाहिए। यहाँ से बताना मतलब उसका भी बढ़िया आ रहा है। टेक योर सीट सर क्वेश्चन का आंसर ये आपने कैसे किया? क्वेश्चन एक मिनट रुक जाओ चेक कर लेंगे ये आ गया। डिवाइड करिए सर टोटल है 2,80,000 आ रहा है 66 इसका करेंगे हाँ इसका क्यों ये करना तो 1/4 करना ही बहुत ही सारे हैं। और यहाँ पे एक और चीज थी। 1,85,000 एक वाली चीज थी। 2,66,000 टू 1,66,000 वहाँ नहीं डाल। 66,500 हाँ सर आ गया सर 66,500 का है ये नहीं ये अभी कहाँ निकालता हूँ पहले इनका बैलेंस निकाल लिया ना आ गया सर उसको 1/4 की कर लिया 2,80,000 पहले निकालो एक मिनट 2,80,000 जो थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था ये सर 15:5:4 इसमें करो डिवाइड ये जो आ रहा है 2,66,000 2,80,000 अच्छा टोटल 15 5 20 4 24 नहीं हो गया क्यों खींच रही है हाँ 25 correct it goodwill total goodwill of the firm is 36,000 and new partners share is 1/6 only 6,000 which will be distributed in sacrificing ratio 45 and 1,500 आप करो सॉल्व अब बैलेंस कैपिटल निकालो अरे 2,12,000 हो गया 75 और 45 7,500 4,500 क्या हो रहा है तुम्हें 80 और 4 84,000 25 हाँ 84
सर 1825 सर 182 आ रही है 500 मतलब कैपिटल ए की 18250 1715 296 upon 1/4 अब आई ना सही 296 upon 1/4 है ना क्या 296 सर इन्होंने अरे इन द नहीं सॉरी सर इसका भी नोट किया है तो वहां पर लिख टू बैलेंस कैरेट डाउन अब सही है सही है बैलेंस शीट वाली ठीक है तो कंबाइंड कैपिटल ये लेनी है वो नहीं लेनी बैलेंस शीट वाली इसका 1/4 करा दूंगा इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 2,80,000 आ रहा है One-fourth of the combined capital of A and B. 1/4 of the combined capital of A and B. 74. 65. हाँ सही है 60,500. इधर का लिखा क्या लिखो बाय कैश 60,500 की कैपिटल लेके आया 60,500 और यहाँ पर लिखो इन दोनों की जो बैलेंस आया था यहाँ 6,500 इन दोनों का आया था कितना 171,500 और 70500 171,500 and 70500 देखा सर लुक हियर नाउ वंस अगेन बंसा एंड यू इधर देखो एक्चुअल में जब न्यू पार्टनर की कैपिटल है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जो कि अलग अलग तरीके से कहते हैं हम यहां पे उन्होंने कहा न्यू पार्टनर विल कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी तो पहले ए एंड बी की कंबाइंड कैपिटल निकालिए कंबाइंड कैपिटल का मतलब होता है यहां पर कैपिटल का मतलब होता है एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स तो रिवैल्यूएशन की और उसके हमने एडजस्टमेंट किए तो ये आई दोनों की कैपिटल ए एंड बीज कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज मतलब ये बैलेंस कैपिटल निकालनी है आपने ये आ गई ए और बी की इन दोनों को आपने ऐड करना है डिवाइडेड बाय 1/4 तो ये आएगी फिर 60,500 ये बैलेंस फिगर है मतलब ये हमने कैलकुलेट किया 60,500 इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 बात समझ में 2,41,000 आ रहा है कितना आ रहा है 2,41,000 आ रहा है टोटल 2,42,000 ठीक है नहीं डिवाइड बाय 4 करेंगे उसे तब आपका आएगा 60,000 कई बार लिखा होता है द न्यू पार्टनर्स कैपिटल न्यू पार्टनर विल कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ 1/5 कर देंगे उसे ही विल ब्रिंग हाफ ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ वो भी मतलब जब भी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट हो रही है तो आपको ये एडजस्टेड कैपिटल पे ध्यान देना है उस पे नहीं देना वो पुरानी वाली पे जो बैलेंस शीट में दी इट इज अ एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स given in the question. After this, the balance sheet, which is very simple. इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 1/4 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल प्रैक्टिस एंड सॉल्व द बैलेंस शीट ऑल्सो